Hello everyone, welcome to our aldehyde, ketone and carboxylic acid unit. We know that in last sessions I give some worksheet regarding to the IUPAC name as well as the structures. I think so you have completed all this worksheet, and now let us check with your answer, because this worksheet, which is based on your NCERT in-text unsolved questions as well as NCERT exercise. So let us start with our 12.1, because I give the write the structures of the following compounds. Right? This is in-text unsolved question of 12.1. So what they given, alpha methoxypropionaldehyde. You have to draw the structure of alpha methoxypropionaldehyde. So how we draw? Propionaldehyde means how many carbon? 1, 2, 3 carbon and CH. Okay, and this is alpha methoxy, because now this carbon is alpha body cell. So alpha methoxy means OCH3, and now we satisfied the valency. Okay, so the structure is like that. Okay, next number 2, 3-hydroxybutanol. So first 1, 2, 3, 4, right? Butanol. This is butanol. 1, 2, 3, 4, and 3-hydroxy. 1, 2, 3. So put OH, and now satisfy the valency with the hydrogen. So CH2, CH. This is structure number 2. Okay. Structure number 3. Structure number 3. What is the structure number 3? So they given 2-hydroxy cyclopentane carbaldehyde. So first we have to draw the cyclopentane carbaldehyde and 2-hydroxy. So the structure is like that: 2-hydroxy cyclopentane carbaldehyde. Next, number 4. So in the case of number 4, what they given? They given like that: 4-oxopentanol. The meaning of oxo means here there is a presence of aldehyde as well as ketone. But we know that aldehyde is a powerful group as compared to the ketone. So ketone, the suffix of ketone is not used, but the prefix of ketone is oxo as a use, right? So we write down like that. Number 4. Number 4 is a, once again, number 4-oxopentanol. So 1, 2, 3, 4, 5. This is pentanol. 4-oxo. 1, 2, 3, 4. So put the ketone group. Okay. Now satisfy the valency with hydrogen. So this is number 4. Number 5. It's a very good di secondary butyl ketone. It's a very good question. So first it's a ketone group. Now I want to draw a di-secondary butyl. Di means 2. Okay. Secondary butyl. What is the meaning of butyl? 1, 2, 3, 4. Here same way. 1, 2, 3, 4. Because this carbon is attached with 1, 2 carbon. Okay. So it's a secondary butyl. So now the satisfied the valency with hydrogen. So which is written like that. Okay. Fine. Okay. Next one. Number 6. Number 6 the given is 4-fluoroacetophenone. First we have to draw the structure of acetophenone. Acetophenone is like that, and 4-fluoro means parafluoro. Okay. Okay. Next question, number 12.2. 12.2. What they given in the 12.2? Name the following compounds according to IUPAC system of nomenclature. We have to give the IUPAC name. So let us start with the example number 1. So what is the answer of number 1? So mind well, in this case, so first we draw the structure is like that. So here 1, 2, 3, 4, 5. So it's nothing but it's a 4-methyl pentanol. 4-methyl pentanol. Okay. What about number 2? So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. तो हम यहाँ से नंबर देंगे क्योंकि कीटोन इज अ पावरफुल ग्रुप. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो क्या हम इसके लिए लिख सकते हैं 4 क्लोरो, राइट,
4 पे क्या है, इथाइल है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल इट्स 4 इथाइल। और फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है। 6 है तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ओके, हेक्सेन, नो ई नहीं लिखेंगे, राइट, हेक्सेन। और 3 on। नेक्स्ट नंबर 3 सेम वे हियर 1 2 3 4। सो उसका स्ट्रक्चर्स हम लिखेंगे तो इसका नाम ये हो जाएगा ना, ब्यूट है, 2 पे इन है और 1 पे आल है, सो इट्स ब्यूट 2 इन 1 आल। नेक्स्ट वन नंबर 4। सो नंबर 4 है, हम इसको किसे देखिए, 1 2 3 4 5 6। सो ऐसे नंबर, हाँ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 4 डायोन, ये हो जाएगा पेंटेन 2 4 डायोन। नेक्स्ट वन नंबर 5। तो आप यहां से नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो हम इसका नाम कैसे लिख सकेंगे कि जैसे 3 और 5 पे क्या है, यहाँ पे ट्राई मिथाइल है, ओके। फिर क्या है, तो कि फिर हेक्सेन है, हेक्सेन। और 2 पे क्या है, तो कि ऑन है। सो 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन है। जैसे 6 नंबर का हम देखना चाहते हैं, 6 नंबर का, तो ये जो है हमें दिया गया है। तो पहले आप इसका 6 नंबर का मैं है ना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, CH3 है, CH3 3 टाइम है, राइट। और दूसरा CH2 और COOH लिखा हुआ है। सो वी गिव द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो 1 2 3 4। तो उसका नाम ये हो जाएगा ना 3 और 3 पे क्या है, डाई मिथाइल है, सो 3 डाई मिथाइल हो गया। फिर क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड, फाइन। लास्ट वन हमें दिया गया है 7th नंबर का। तो हमें पता ही है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया हुआ था, दिस इज फिनाइल ग्रुप, राइट, एंड CHO एंड अनदर CHO बोथ आर पेरा ऑफ ईच अदर। सो इसका नाम हमें मालूम है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या था, मैंने आपको बोला था टॉर्थेलाल्डिहाइड, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड था वो टॉर्थेलिक एसिड था, तो उसके टॉर्थेलिक एसिड में से उसका नाम क्या हो गया है, टॉर्थेलाल्डिहाइड, फाइन। जैसे हम उसका दूसरा वर्जन भी हम देख रहे हैं, जैसे हम ये भी आपको दिया हुआ था, ये भी NCERT का ही है। NCERT का मेरा 12.3 है, जो इसकी एक्सरसाइज है उसका 12.3 नंबर का पोर्शन चल रहा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमें वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। जैसे हम फर्स्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, उसका बताया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऐसा बताया हुआ है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, और तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है। नाउ द रिमेनिंग वैलेंसी satisfied with the help of हाइड्रोजन, ओके। जैसे दूसरा हमें बताया हुआ है, वो क्या हमें बताया हुआ है, जैसे पेरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, इट्स अ वेरी गुड वन, हाँ, प्रोपियोफिनोन हमने बताया हुआ है। पहले पेरा नाइट्रो मीन्स 4 नाइट्रो है, और एसिटोफिनोन नहीं है, प्रोपियोफिनोन है। एसिटोफिनोन में क्या होगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, लेकिन हमें एक कार्बन और लगाना है, सो इट्स कॉल्ड एज पेरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। उसके बाद हमने बताया हुआ है पेरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। सो पेरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड हम किस तरह से ड्रॉ कर सकेंगे, जैसे पेरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, पहले CHO पेरा ऊपर मिथाइल है, राइट, सो इस पेरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। फोर्थ वन हमें दिया हुआ था 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ऐसा हमने दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए कि जैसे हमने उसका जो स्ट्रक्चर्स हम देखना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 कार्बन लगा दें यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन है, यहाँ पे वैलेंसी हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट, और यहाँ पे मिथाइल भी है,
और वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, हो गया। जैसे 5th नंबर का हमें बताया हुआ है 4-chloropentan 2-on, यह हमें बताया हुआ है 4-chloropentan 2-on। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो है, पेंटेन है और 2 पे ऑन है। सो वैलेंसी हम खत्म कर देंगे, तो यहां से ऐसे हो जाएगा CH2 है और यहाँ पे CH है। नेक्स्ट वन हमें बताया हुआ है 3-bromo 4-phenyl pentanoic acid। सो 1 2 3 4 5। सो पेंटेनोइक एसिड हो गया। यहाँ पे 3 पे क्या है, हमें ब्रोमो लेना है। 4 पे क्या है, तो कि फिनाइल यानी C6H5 हमें लगाना है और उसका वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH है, हो गया। जैसे हम नेक्स्ट हम बताना चाहते हैं नंबर 7th में हमें दिया गया है नंबर 7th में दिया हुआ है क्या, पेरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ये हमें अच्छा पहले हम बेंजोफिनोन का ड्रॉ कर देते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफिनोन इज लाइक दैट, और उसके पेरा और पेरा दोनों पे क्या है, डाइहाइड्रोक्सी है। सो पेरा डाइहाइड्रोक्सी हो गया। नेक्स्ट वन हमें दिया गया है नंबर 8 पे, और नंबर 8 पे हमें X2-in-4 आयोनिक एसिड है। तो पहले हम 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। जैसे COOH तो फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 पे इन है, जैसे 1 और 2 पे इन है, और 4 आइन मीन्स यू हैव टू पुट अ ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड। नाउ द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे भी आ जाएगा CH, ठीक है। तो ये मेरा NCERT की एक्सरसाइज का 12.3 नंबर का पोर्शन भी यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे 12.4 नंबर का हमने दिया गया है कि राइट द IUPAC नेम of the following ketones and aldehydes, right? We have to give the IUPAC name, and what the other says that wherever possible give also common names। यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी में कॉमन नेम डालने ही है, लेकिन जिसमें भी होंगे हमें दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट वन हमारा जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये हम IUPAC, तो ये कितना कार्बन है 1 2 4 6 + 7। सो इट्स कॉल्ड एज एन हेप्टेन 2-on हो जाएगा। और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉमन नेम है, राइट। पहले मैंने IUPAC डाला हुआ है, कॉमन नेम हो सकता है इसमें, यस, इसमें मिथाइल है और यहाँ पे पेंटाइल है, और पेंटाइल नॉर्मल पोजीशन पे है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल नॉर्मल पेंटाइल कीटोन, ये हम लगा सकते हैं। दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा हम आप देख लीजिए, यहाँ पे हम नंबर लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4-bromo आ जाएगा, 4-bromo। फिर क्या है, 2 पे मिथाइल है, सो 4-bromo 2 मिथाइल। फिर क्या है, हेक्सेनाल है, हेक्सेनाल। तो इसका हम जैसे मैंने आपको एक बार बोला था, यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, ये गेमा है, इस वजह से भी हम चल सकते हैं। तो उसका कॉमन नेम ऐसा आ जाएगा ना, गेमा ब्रोमो। ये अल्फा पे क्या लिखा है, अल्फा पे है मिथाइल, राइट। और तो 6 कार्बन को हम बोलेंगे कैप्रोआल्डिहाइड। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमको मालूम है कि एक कार्बन जैसा COOH है तो उसको फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की वजह से हम चल रहे हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है। 5 कार्बन के लिए उसका नाम है वैलरिक एसिड। M6 का मेरा नाम है कैप्रोइक एसिड। ये जो कैप्रोइक एसिड है ना, वो पहले उसका जो ओरिजिन था ना, उसको लैटिन में कैप्री यानी गॉट, यानी कि जो बकरी होती है गॉट होती है, उसमें से वो सीक्रेट होता है, तो इसलिए उसका नाम लिखा गया था कैप्रोइक एसिड। सो इट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ aldehyde of caproic acid. That's why we have to write a caproaldehyde. यहाँ पे हमें हेप्टेनाल, ओके, हेप्टेनाल, यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है, राइट। नंबर 4 में हम लगाएंगे, तो ये तो हमें मालूम ही है, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन,
पेंटेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, और यहाँ पे भी वही नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड एज यूजुअल, जो नाम है वही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन हमें दिया हुआ है नंबर 1 2 3 4th पॉइंट मेरा मिसिंग हो गया, ये 5th है ना, मैं 4th लगा रहा हूँ, पहले मैं 6th बता रहा हूँ आपको। सो इसका क्या होगा, जैसे ये है तो उसका हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेनॉन, हम ऐसा लिख सकते हैं डाइफिनाइल मीथेनॉन। तो उसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन, लेकिन मैंने आपको बताया था अभी हाल में क्या है, आईयूपीएससी इंस्टीट्यूट ने ही बेंजोफिनॉन को ही क्या बता दिया है, अभी आईयूपीएससी चल सकता है। मेरा एक जो मिसिंग था नंबर 4th वन, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नंबर 4th था मेरा PHCH डबल बॉन्ड CHCHO, ये हमने दिया हुआ, तो इसका तो यही होगा ना कि 3 फिनाइल है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग में दे देता हूँ 1 2 3, सो दिस इज 3 फिनाइल। फिर क्या है, प्रोप है, 3 कार्बन है, और क्या है 2 इनाल है, फाइन। और व्हाट इज द कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन नेम हम ऐसे अल्फा बीटा ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे इसका बहुत बढ़िया नाम है बीटा फिनाइल है। फिर क्या है, एक्रोलीन है, एक्रोलीन हमने लास्ट सेशन में देखा था, एक्रोलीन का स्ट्रक्चर द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड इज एक्रेलिक एसिड, राइट। तो उसी वजह से हमारा यहाँ पे आईयूपीएससी जो है वो मैंने यहाँ को आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ था। फर्दर फ्यूचर में हम जैसे एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या सोल्व्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे लेक्चर में इसका जो इफेक्ट है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब हम नया एक टॉपिक ले रहे हैं, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारा 12.1.2 नंबर का टॉपिक है, 12.1.2, और जो ये टॉपिक हमें दिया हुआ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। क्या दिया है हमें, जो स्ट्रक्चर्स है कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर्स वो क्या है, तो हम थोड़ा उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। सो वी नो दैट द C double bond O, right, once again the C double bond O bond in aldehyde in ketone is like the C double bond O bond in alkene. We know that in alkene is made up of a 1 sigma and 1 pi bond. So in the formation of carbonyl group, carbon uses sp2, because the carbonyl carbon atom is a sp2 hybridized, because C double bond O is sp2 hybridized, okay. So and forms a 3 sigma bonds. You have to see that 1 2 and 3 sigma bonds. If I draw the structure like that, CO, right, so this is sigma bond, sp sigma in lone pair. So okay, sp2 hybridized, okay. So the 4th valence electron of a carbon, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वहां पे, वो तो इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, p ऑर्बिटल्स का था। सो जैसे कार्बन का भी p ऑर्बिटल का है, जैसे ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल का है। सो नाउ दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड बिटवीन देम, ओके। सो इट मींस दैट in addition the oxygen atom also have a 2 non-bonding electron pairs. Thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane, क्योंकि sp2 होगा तो same plane में ही होगा, okay. So now the pi electron cloud is above and below of this plane, so the bond angles are approximately 120 degree. So approximate 120 का उसका bond angle लगेगा, right. दूसरा क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसा भी बता रहे हैं, जैसे the 2 half filled of this 2pz orbitals, one of each carbon and oxygen atom overlap sidewise to form a pi bond. So from this above discussion, it is clear that the carbonyl group means carbonyl carbon, oxygen and 2 atoms directly bonded to the carbonyl carbon and lying in on a one plane. Okay, now what the electron diffraction study and spectroscopy studies give the informations. The oxygen atom in the carbonyl group is far more electronegative than the carbon. यहाँ पे हम इसको ऐसी तरह से भी देखना चाहेंगे। देखिए आप,
We know that oxygen is a more electronegative than carbon because the electronegativity of oxygen is 3.5 while carbon is 2.5. So now this pi electron migrate towards the oxygen and now it's converted into polar. So the carbon oxygen double bond is polarized due to higher electronegativity of oxygen related to the carbon. Hence the carbonyl carbon is an electrophile. ये क्या हो जाएगा? Electrophile है, means less, इसमें थोड़ा कम है इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसे act as a Lewis acid and carbonyl oxygen is a nucleophile, as a Lewis base center. So carbonyl compounds have a substantial dipole moments and they are polar than ethers. इसकी 2.3 से 2.8 d की इसकी डाइपोल मोमेंट मिलती है. सो द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल ए एंड डाइपोलर बी स्ट्रक्चर्स एज शोन. यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें थोड़ा इसका दिखाई दे रहेगा. ये आपको हमने एक तरह से बताया हुआ है. लेकिन कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है. तो यह कौन सा रिएक्शंस देगा? देखिए, डेफिनेटली इट गिव्स अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही यहाँ पे लगेगा क्योंकि कार्बन हमारा प्लस डेल्टा है. तो हम जैसे कंपैरिजन बता रहे हैं कि जैसे हमने सी डबल बॉन्ड सी में देखा था, सी डबल बॉन्ड ओ में देख रहे हैं, तो सी डबल बॉन्ड सी में क्या था? तो कि सी डबल बॉन्ड सी जैसे हमने देखा था, तो जो देखो बनने में कंपैरिजन करेंगे तो बनने में एक सिग्मा एक पाई है. बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, both are planar in nature, but what's the dissimilarity between C double bond and C double bond C? Here carbon oxygen double bond is polar, but C double bond C is non-polar. यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ हमने बताई हुई है सी डबल बॉन्ड, वो 123 पाइकोमीटर है, while in the case of C double bond C is 134 पाइकोमीटर. And the most important point is the carbonyl compound undergo a nucleophilic addition reactions. But compounds containing double bond, ethylenic double bond means an alkene, they undergo electrophilic addition reactions. तो यहाँ पे हम इसका जो आज का सेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट सेशन से हम प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.